میں سب سے پہلے بات کریں گے مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل اجلاس کے. ایک بار پھر آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں جہاں پر آج مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا اجلاس لاہور میں جاری ہے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف خطاب کرنے آ رہے ہیں. ماروی میمن جنہوں نے کل مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے وہ بھی اس موقع پر موجود ہے. شہباز شریف کو آج مسلم لیگ نون پنجاب کا بلا مقابلہ صدر منتخب کر لیا گیا ہے اور پارٹی کے دیگر عہدیداروں کی تقرریوں کا بھی انہیں ہی اختیار دے دیا گیا ہے. اس وقت ماروی میمن خطاب کر رہی ہیں مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل اجلاس سے. میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، میرے سارے لیڈران جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اور جو سامنے بیٹھے ہیں، اور میرے بہت 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 پیارے مسلم لیگ نون کے کارکن، آپ سب لوگوں کو السلام علیکم. مجھے جو عزت بخشی ہے ماروی، مجھے بٹائی کی ماروی کو ہمیشہ یاد رہے گی، بہت یاد رہے گی. آپ نے جس خلوص سے بلایا اور جو عزت بخشی، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی ہم سب وہ کام کریں گے جس سے پاکستان اور پاکستان کے ماروڑے، پاکستان کی عوام کا فائدہ ہوگا اور صرف پاکستان کا. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، اور میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں صرف کام کام اور کام کرنے آئی ہوں. آپ کی بہت مہربانی. پاکستان مسلم لیگ زندہ باد، پاکستان زندہ باد. میں صرف کام اور کام کرنے آئی ہوں. پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد. ماروی میمن جنہوں نے گزشتہ روز ہی پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کی ہے رائیونڈ میں، انہوں نے ہم مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف کے ہمراہ پریس کانفرنس کی تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے 3 سال میں اس بات کا اندازہ لگا لیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھی کون ہے، اسٹیبلشمنٹ کا مخالف کون ہے، اور آج بھی انہوں نے اسی عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی خاطر کام کریں گی. کل بھی انہوں نے کہا تھا کہ کسی قسم کے عہدے کا لالچ نہیں ہے. اور اس وقت ناظرین مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف جنرل کونسل اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنرل کونسل کے عزیز بھائیوں بہنوں، معزز خواتین و حضرات اور معزز قائدین، مسلم لیگ کو آپ سب پہ بڑا فخر ہے. آپ ہیں اصلی مسلم لیگی جنہوں نے مشکل وقت میں مسلم لیگ کا دامن نہیں چھوڑا اور ہر وقت مسلم لیگ کے ساتھ وفاداری کی ہے. وفادار انسان مجھے بہت پسند ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب وہ لوگ جنہوں نے ڈکٹیٹرشپ میں بھرپور ساتھ دیا مسلم لیگ نون کا، وہ سونے میں تولنے کے لائق ہے. میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آج جو یہاں پر ذرا تھوڑا سا نعروں میں کمی، بس اب میرا آپ سب کو یہ درخواست ہے، اب ذرا خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں. یہ بھی خاموش ہو جائیں. نہیں یہ جو سبز کپڑوں والوں کو ذرا مہربانی کر کے خاموش کرائیں. بہت
बहुत शुक्रिया आपका, आपके जज्बे का बहुत शुक्रिया। यहाँ से भी अब ज़रा खामोशी होनी चाहिए। तो मैं अभी देख रहा था अल्लाह ताला के फजल करम से यहाँ पर खुशी का एक माहौल, ये नारे मैं सुन रहा था, आपके खुशी के जज्बात जो आपके चेहरों पर थे उनको मैं नोट कर रहा था, और उस वक्त मेरा दिल मुझे ये कह रहा था, मेरा दिल मुझे बार बार कह रहा था कि यही खुशी जो आज मैं इस हॉल में देख रहा हूं, यही जो खुशी के जज्बात आपके चेहरों पे देख रहा हूं, अल्लाह करे कि ये सारे जज्बात, खुशी के जज्बात पाकिस्तान के घर घर में दाखिल करें। आमीन। अल्लाह करे कि ये मायूसी के बादल छट जाएं, और खुदा करे कि पाकिस्तान का हर घराना खुशहाल हो, हर घर के अंदर जो है वो रोजगार मिले, उनको खुशहाली आए, और वहां कभी उनके चिराग ना बुझें। अल्लाह करे पाकिस्तान के हर घर के अंदर अल्लाह करे कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद हों। और ये हो सकते थे, आज भी हो सकते हैं, और ये कल भी हो सकते थे। शायद हमारा आज अपने कल से इतना बुरा ना होता जो आज हम देख रहे हैं। अगर पाकिस्तान में तसलसल रहता, हुकूमतें उनको अपनी मुद्दत पूरी करने दी जाती, और उनको 2.5 साल में उनको छुट्टी ना कराई जाती, तो आज का पाकिस्तान एक मुख्तलिफ पाकिस्तान होता। मैं उस ट्रैक रिकॉर्ड से बात कर रहा हूं जो आपके सामने है, मुस्लिम लीग का ट्रैक रिकॉर्ड। मुस्लिम लीग का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। उससे पहले वजीर आज़म बनने से पहले मैं पंजाब का वजीर आला था। उस ट्रैक रिकॉर्ड को भी आप अपने सामने रखें। जब वजीर आज़म अल्लाह के फजल करम से आपके वोटों से बना, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी आप अपने सामने रखें। वो भी एक दिन था जब हम, ये कहाँ मोटरवे खत्म होता है, यहाँ बाबू साहबू के पास एक अजीमुशान जलसा हुआ था। वो आज तक मुझे याद है जलसा, यार कभी उसकी तस्वीरें मुझे दिखाओ। वो पता नहीं जलसा कहाँ गुम हो गया है। इतना बेहतरीन जलसा था वो, इतना बेहतरीन जज्बा था। मैं कहता हूं आप यकीन करें, इतने मंसूबे थे हमारे ज़हनों में, इतने मंसूबे थे हमारे एजेंडे पर, हमारे दिलों में, कि हर महीने किसी ना किसी ऐसे मंसूबे का इफ्तिताह होना था, और लोगों की खुशियां अल्लाह के फजल करम के अरूज पर होती। ये खुशहाली की हमारी एक कोशिश थी जिसको पूरा नहीं होने दिया गया। अगर वो पूरा उसको होने दिया जाता, आज हम इस खित्ते में सबसे पीछे ना होते। ये खित्ता तो छोड़ो, इस बर्रे आज़म में, एशिया के बर्रे आज़म में पाकिस्तान का एक नाम होता। वैसे तो दुनिया में भी अल्लाह के फजल करम से हमारा नाम बुलंद हुआ था एक दिन, 28 मई के दिन। कोई हमें जो है वो इस तरह से मत ले। हम भी अल्लाह के फजल करम से दुनिया में एक नाम रखते हैं। हम भी अल्लाह के फजल करम से दुनिया की एक ताकत हैं। अभी क्या कहा था मैंने, अभी क्या कहा था, हाँ ये क्या देखे ना, देखे ये क्या हो रहा है। अभी क्या कहा था मैंने, हम भी दुनिया की एक ताकत हैं या नहीं है। दुनिया की 7 ताकतें हैं, 7 ताकतें, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। बोलो है या नहीं है। आपके हमसाए मुल्क में ना दाएं वाले हमसाए में, ना बाएं वाले हमसाए में, ना शुमाल वाले हमसाए में, ना जनूब वाले हमसाए में किसी के पास अभी तक मोटरवे नहीं है। और किसी ने घुमंड में आके
किसी ने घुमंड में आके अपने बम चला दिए ये सोचे बगैर कि पाकिस्तान के पास क्या है। ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान के पास अल्लाह के फजले इतनी ताकत है कि अगर हमने 5 धमाके किए तो पाकिस्तान 6 धमाकों के जवाब देगा। भाई ये सब कुछ किस दौर में हो रहा था? ये सब कुछ किस दौर में हो रहा था? मेरे पास ये किसी फौजी जर्नैल या फौजी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का दौर नहीं था। ये एक जमहूरी दौर था और पाकिस्तान के अवाम के वोटों से मुंतखब हुकूमत का दौर था। और उस वक्त किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी नहीं थी मुल्क में। उस वक्त पाकिस्तान में किसी किस्म की इंतहा पसंदी नहीं थी। उस वक्त पाकिस्तान इस खिते में सबसे बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क था। उस वक्त पाकिस्तान जो है वो पुरअमन मुल्क था। इस तरह से बमों के धमाके नहीं होते थे, कुछ धमाके नहीं होते थे पाकिस्तान में जो आजकल हम देखते हैं। और उस वक्त पाकिस्तान अपनी इज्जत और तौकीर रखता था, किसी के आगे झुकता नहीं था। मैं बार बार ये कह चुका हूं कि जो मोटरवे बनाई गई थी और ये जो पाकिस्तान ने एटमी कुव्वत में इतना अल्लाह के फजल करम से मकाम पैदा किया, ये किसी से मांगी हुई दौलत के बनाते पर नहीं किया था। ये अपने अल्लाह के फजल करम से खून पसीने की कमाई थी हमारे पाकिस्तानियों की। और फिर पाकिस्तान हर मैदान में पाकिस्तान जो है वो तरक्की के झंडे गाड़ रहा था और पाकिस्तान की इज्जत थी दुनिया में। कोई सदर दुनिया का पाकिस्तान को उसका सर नहीं झुका सकता था और कोई किसी के सामने पाकिस्तान ने उस वक्त सर नहीं झुकाया। किसी के आगे हम जाकर भीख नहीं मांगने गए, किसी से जाके हमने कोई कर्जा नहीं मांगा। हमने अपने पांव पे खड़ा होने की कोशिश कर रहे थे और जब हम पे एटमी धमाकों के बाद पाबंदियां लगी, हमने कहा ये तो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन दिन आया आज कि पाबंदियां लगी, हम इन पाबंदियों को डिफीट करेंगे, इन पाबंदियों को शिकस्त देंगे, अपने पांव पे खड़ा होना सीखेंगे, अपने दस्तों बाजू से काम करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने मुल्क को बनाएंगे और संभालेंगे। भाई ये मैं उस ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, उस ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं जो ऊपर बैठे हुए हमारे नौजवानों ने, बुजुर्गों ने भी देखा है। नीचे बैठे हुए हमारी खवातीन और हमारे बुजुर्गों भाइयों ने अपनी आंखों से देखा है कि पाकिस्तान एक नया मुल्क बन रहा था। पाकिस्तान में उस वक्त तब्दीली बड़ी तेजी के साथ आ रही थी और पाकिस्तान के घर घर में खुशहाली पहुंच रही थी। बेरोजगारी का बड़ी तेजी के साथ खात्मा हो रहा था और उस वक्त ये जो है ये गैस स्टेशन इतने दिन कभी बंद नहीं होते थे, कभी पेट्रोल पंप्स कभी बंद नहीं होते थे। उस जमाने में लोड शेडिंग नहीं थी। हिंदुस्तान को बिजली देने के बारे में समझौते पे बातचीत हो रही थी। उस वक्त पाकिस्तान के कारखाने चल रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान का कोई कारखाना बंद नहीं बल्कि नए कारखाने लग रहे थे। यार खामोश, देखे ना, ये अभी आपने वादा किया था कि नहीं होगा। अब मेहरबानी करें, वादे पे कायम रहें। आप हमारे बड़े अपने वादे पे कारबंद रहें और मुझे 10 मिनट बात करने दें। आपका जज्बा यकीनन मेरे लिए बहुत खुशी का बायस है। और आप जानते हैं हम पे एक बड़ा इल्जाम लगा। इल्जाम देखो ना, ये नहीं भाई, ये गलत है। हमारे जमहूरियत में बैठ जाए। अब आप बैठ जाए।
میں ایک الزام ہم پر ایک الزام لگا، بس ٹھیک ہے، اب لگا لیا نعرہ، اب ایک دم خاموشی ہونی چاہیے، اور میری بات سنیے. دیکھیے پھر میں جب وہ لائن سے ہٹ جاتا ہوں نا، پھر لائن پہ دوبارہ آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ مہربانی کر کے خاموش رہیں، بس ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، مہربانی آپ کی. ابھی جب جھنڈے لہرا رہے تھے تو بڑا اچھا لگ رہا تھا مجھے میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کرے کہ سارا پاکستان ایسا ہی ہو جائے، اور ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر آپ میں سے سب لوگ پرعزم ہیں، اگر آپ سب پرعزم ہیں، اگر آپ سب PMLN کے ایک زبردست قسم کے ساتھی ہیں، تو انشاءاللہ پاکستان بہت جلدی اسی طرح کا ہو جائے گا سارا. ہم پہ الزام لگا کہ جناب ہم نے ہندوستان کو، یعنی مجھ پہ نہیں، میں پاکستان میں ہماری حکومت کی بات کر رہا ہوں. حکومت پہ کیا الزام لگا؟ مشرف نے کیا الزام لگایا؟ ہم نے ہندوستان کو چینی ایکسپورٹ کی ہے. بھائی چینی ایکسپورٹ کی ہے، امپورٹ تو نہیں کی. آپ نے تو امپورٹ بھی کی ہے وہاں سے چینی، اور چینی ایکسپورٹ کرنا تو پاکستان کے لیے باعث فخر ہے. یہ تو باعث عزت ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان اپنی اشیاء جو ہے وہ باہر ایکسپورٹ کرے، اور خاص طور پہ ہندوستان کو کرے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ ہمارے ان لوگوں کا ذہن دیکھیں آپ کہ جو پاکستان کے آگے جمہوری حکومت کو ٹاپل کر کے اپنی حکومت قائم کرتے ہیں ناجائز، اور اس کے بعد اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں. اور کیا آج تک مشرف صاحب نے کیا ہے اس ملک کے اندر؟ ابھی مشرف کا نام یاد آ رہا تھا مجھے بڑی ایک دلچسپ بات یاد آئی ہے، اور میں نے یہ کہا آپ دیکھیے یہ خوشحالی جو ہے، یہ خوشحالی تب گھر گھر جائے گی کہ ہم اصول کی سیاست کریں. ہم سیاست میں بے اصولی نہ کریں، کلا بازیاں نہ کھائیں. ہم سیاست کے اندر جو ہے سمر سالٹس نہ کریں. یہ سیاست جو ہے، یہ اگر صاف ستھری سیاست پاکستان میں ہوگی، میں گارنٹی کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ یہ چند سالوں میں نہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس سے بھی پہلے خوشحالی پاکستان میں آنا شروع ہو جائے گی. اب انشاءاللہ اب تھوڑا وقت رہ گیا ہے، تبدیلی آنے میں تھوڑا وقت رہ گیا ہے. اس کے بعد دیکھیں انشاءاللہ پاکستان پھر کیسے اٹھتا ہے اوپر. تو جب میں یہ مشرف کا نام لے رہا تھا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں کیا یہ سیاست ہے، یہ کیا گندی قسم کی سیاست ہے، کیا یہ فضول اور میں سمجھتا ہوں کہ منافقت سے بھری ہوئی سیاست ہے کہ ایک طرف تو یہ کہنا کہ ہم جناب مشرف کو 20 مرتبہ یا 10 مرتبہ وردی میں ہم صدر منتخب کریں گے. یہ کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا. آج دیکھیے، آج انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کے ساتھ انہی کی حکومت میں بیٹھ کر آج مشرف کے ریڈ وارنٹ جاری کروائے جا رہے ہیں. جو ریڈ وارنٹ اور گرفتاری کے وارنٹ جاری کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ شامل ہیں. بھائی اگر کسی کے ساتھ تھے تو رہو ساتھ. اتنی جلدی ساتھ چھوڑ جاتے ہو؟ اس بندے میں مصیبت آئی ہے تو بھاگ گئے ہو، اور پھر ساری عمر کہتے رہے ہو کہ ہم پیپلز پارٹی خون کی دشمن ہے ہماری. آج اسی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہو. یہ سیاست جو ہے، یہ سیاست پاکستان کو اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتی. یہ پاکستان کے اندر روشنیوں والا پاکستان نہیں بنا سکتی. ہمیں اس منافقت کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا. صاف ستھری جو دل میں منہ میں لے کر آؤ، اور جو دل میں محسوس کرتے ہو وہ کہو، چاہے وہ کسی کو بری لگتی ہے اچھی لگتی ہے، لیکن پاکستان کے لیے اچھی ہوگی وہ. اسی لیے، اور آج دیکھیں اللہ کا شکر ہے، نئے نعرہ لگانے والے آہستہ آہستہ اب غائب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور تبدیلی کی بات کرنے والے جانتے ہیں کہ اس ملک میں تبدیلی PMLN لے کے آئی تھی اور لے کے آئے گی انشاءاللہ. یہ سب لوگ تبدیلی والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہیں یا نہیں ہیں، سب لوگ تبدیلی والے بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کے اندر
जो पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाबी प्रोग्राम की सोच रखते हैं। शहबाज शरीफ साहब, आप सदर मुंतखब हुए हैं आज। मैं आज आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। आप वज़ीर आला हैं पंजाब के, आप पंजाब के वज़ीर आला हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। और आप जानते हैं कि मैं आपके कामों को आपके मुंह पे कम और बाहर और टीवी पर, मीडिया पर ज्यादा मुबारकबाद देता रहता हूं आपको। इनके मुंह पर ये देखिए क्या हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब, आप अपना भाई देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैंने आपको बिल्कुल मैंने आपको सच कहा है। भाई इनको बिठाएं भाई, बिठाएं इनको। कुरैशी साहब आप बैठ जाए। शहबाज शरीफ साहब को मैं वाकईतन मुंह पे मैं ज्यादा तारीफ नहीं करता, लेकिन दिल में मैं खुश होता हूं। मुंह पे मैं ज्यादा बल्कि यही कहता हूं कि भाई अभी और करो, और तेजी के साथ काम करो, और मेहनत करो, और दिन रात भागो दौड़ो, इनको साथ लेकर भागो। ये भागने के लिए तैयार है सब, आपके साथ साथ है या नहीं है? ये सब आपके कारकुन हैं, ये चाहते हैं कि ये हुकूमत कामयाब हो, ये दिन रात ये भागेंगे। और मैं ये समझता हूं कि अब जितना भी वक्त रह गया इलेक्शनों में, जितना भी वक्त रह गया, शहबाज शरीफ साहब अपनी रफ्तार को दुगना करो, और बाकी जो साथी साथ बैठे हैं वो भी अपनी रफ्तार को दुगना करें, और हम सब मिलकर जो है वो पाकिस्तान की खिदमत में कोई कसर न छोड़ें। आज पूरे मुल्क के अंदर शहबाज शरीफ साहब ये बात मानी जाती है, तस्लीम की जाती है, सिंध में तस्लीम की जाती है, और KPK में तस्लीम की जाती है, बलोचिस्तान में तस्लीम की जाती है कि पाकिस्तान में अगर कोई सूबा जो है जिसमें कोई तरक्की होती नजर आती है, जिसमें कोई काम होता हुआ नजर आता है, वो पंजाब है। आज बड़ी खुशी की बात है, और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने पंजाब के अंदर तमाम स्कूलों के अंदर आपने ये जो लेबोरेटरीज कायम करती हैं, और जिसमें आपने अपने बच्चों को बड़ी सहूलतें दी हैं। ये है वो यूथ इंशाल्लाह जो उससे फायदा उठा के पाकिस्तान की दिन रात खिदमत करेगी। ये है वो यूथ जो पाकिस्तान इससे इस्तेफादा करके पाकिस्तान को इंशाल्लाह तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाएगी। और फिर आपने जो ये लैपटॉप दिया है, ये जो लैपटॉप आपने बच्चों को दिया है, ये बड़ी खुशी की बात है, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह एक इनकलाबी तब्दीली आएगी पाकिस्तान में। आप सबको मेरी तरफ से, इन तमाम कारकुनों की तरफ से दिली मुबारकबाद हो। अभी आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, हम एक इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा मुझे उम्मीद है, अल्लाह के यहाँ बड़ी उम्मीद है। भाई देखें, आप खामोश हो जाए जरा। अल्लाह ताला के यहाँ बड़ी उम्मीद है। हम एक इनकलाबी प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं, एक इनकलाबी प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं जो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तकदीर बदल कर रख देगा। उसके लिए दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह उस प्रोग्राम को अपनी अगली हुकूमत में, जो कि अल्लाह के फजल करम से यकीनन, अल्लाह की ज़ात पे मुझे यकीन है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी पूरे मुल्क में। इंशाअल्लाह हम इसको, उस एजेंडे को नाफिज करेंगे, और अल्लाह के फजल करम से नाफिज करके इस मुल्क की तकदीर को बदल डालेंगे। और उसमें इंशाअल्लाह हम चाहते हैं कि हमारे तमाम कारकुन भी हमारा साथ दें। पूरी पार्टी जो है इंशाअल्लाह उसमें हम उस प्रोग्राम को पूरी पार्टी को बताएंगे, और इंशाअल्लाह उसके सामने उसको उनकी मदद से, आपकी मदद से उसको हम नाफिज करेंगे, और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह एक बाइज़्ज़त और तौक़ीर वाला मुल्क बनाएंगे। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को यकीनी बनाएंगे, और पाकिस्तान में इंशाअल्लाह आप देखिए खुशहाली जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी स्पीड के साथ पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाअल्लाह फिर आपने इन नारों ने काम थोड़ा सा खराब किया है, लेकिन फिर मौके पे इंशाअल्लाह पूरी बात करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नाज़िर हो, और
की तरफ से खाने पे आइए और नारा लगाइए मेरे साथ मिलकर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान। मुस्लिम लीग के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की पंजाब की जनरल कौंसिल से खिताब कर रहे थे, और आज के हवाले से बताएं कि शहबाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून पंजाब का बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिया गया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज ऐलान किया है कि अगली हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही होगी और इनकलाबी प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं जो पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा, और इस सिलसिले में कारकुन और पूरी कौम पाकिस्तान का साथ दे। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को बिला मुकाबला मुस्लिम लीग नून पंजाब का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी दी है। मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल का ये इजलास अपने अख्ताम को पहुंचा और इसमें जनाब शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर मुंतखब हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ इसमें मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के साथ मारवी मेमन भी शरीक थी जो अब मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन चुकी हैं।